Right, children. So in the previous class we have studied about the biotic factor, and I said the biotic factors are categorized into three, that is the producers, the consumers and decomposers. Each one of them is playing a significant role and we cannot remove any of these categories from the ecosystem. There cannot be an ecosystem where only producers are there, there cannot be an ecosystem where there is only consumers are there, or where there cannot be an ecosystem where there is only decomposers are there. So all three category of organisms are required to be there in the ecosystem. हर तीनों चीज़ें होना जरूरी है. That is, the producers are there, the consumers are there, and the decomposers are there for a healthy ecosystem. If the number of producers increases and the consumer decreases, then ecosystem will collapse. If the number of decomposers are totally removed from the ecosystem will collapse. If the ecosystem do not have producers, the ecosystem cannot survive at all. So each organism is playing a very significant role. Their role cannot be done by someone else. So that is why the ecosystem is so important to study. Say for example, we take a food chain. Yesterday I have given you the definition of food chain. I said food chain is a sequence of the organisms which become food for one another. If we arrange them, we link them in the form of chain, then we call it a food chain. Food chain, I said, can be as small as 2 individuals and it can be as long as 5 to 6 individuals. You cannot have a food chain more than 6 individuals. Each organism which is taking part in a food chain is called trophic level because they are acting as a food. Every organism in this world, today or tomorrow, will become food for somebody. Either the living while organism is alive, it may become food for someone, or on its death. अब हम लोगों ने क्या किया? We have simply कि अभी हम अपनी बॉडी को किसी को खाने नहीं देते. So what we did, we started digging them up and putting in the soil, burying them in the soil, or we are started burning them. What difference does it make? Whatever way, it will ultimately go back to the air, water and soil. Even if it is in the soil, it will be decomposed by the action of microorganisms and it will return back to the soil and water. Even if you burn them, you are creating pollution, the body is burning, and the carbon dioxide and the water and sulfur will change. Sulfur dioxide, phosphorus will change. Phosphorus dioxide and all nitrogen will change. Nitrogen oxide, and they are returned back to the air and water. Some remain in the form of ash which goes in the soil. So this is what the funda is. We are on burning, we are somehow fastening the process which is otherwise take a very slow way. It will take some years, and when the cremation is done, the body is burned, dead body is burned, the process of returning back to the environment is done rather fast. Okay, we take a food chain having grass. The grass is consumed by a bird. The bird becomes food for a snake, and snake becomes food for an eagle. Okay, so we got 4 individuals. Suppose this particular number of grasses which are there receives 10,000 joules of energy on 22nd July 2020. Of the 10,000 joules of energy which is falling, only 1% will fix it. That is 100 joule will store in its leaves, flowers, fruits, etc. Okay, that will change in the form of glucose alone. Of this 90 joule will be used by the grass itself for its survival, and the 10 joule will store in its leaf, flower, fruit. 10 joules will store in its leaf, flower, fruit, seeds, etc. etc. Of the 10 joules, when the bird eats, it will consume 9 joule for its own activity, for flying from one place to other, for making chi-chi, chu-cha, for making nest, and for jumping, and for only sitting, for its heart to beat, and for its lungs to work and other things. So all these require energy, and that energy is consumed, and 1 joule will be fixed in its body in the form of
various proteins, carbohydrates in its tissue. Of the 1 joule, 0.9 joule will be used by the snake and 0.1 joule will be passed to the eagle. This is what the system is. This is called 10% law of energy. 10% law of energy in a food chain, and food chain is a representation of an ecosystem. So if it is in the food chain, it is in the ecosystem. 10% energy is passing. Okay, so this is what the thing is. Now the question is, हम तो क्या फालतू बैठे हैं क्या? हम ये देखेंगे कि ये घास को चिड़िया खा रही है, अभी चिड़िया को कौन खा रहा है? किस्मत की बात होगी कि पूरा एक ही दिन में हो गया। किस्मत की बात होगी कि आपको कई घंटों कई महीनों बैठना पड़ेगा। We imagine that the whole thing is done in one day. There was certain number of grasses and these grasses were eaten away by some birds. Grass बोले तो मतलब grass क्या, any cereal plants can be considered as grass. उसके grains को सब चिड़िया खा गया, चिड़िया को snake खा गया, snake को eagle खा गया. Energy transferred like this. The eagle is getting nearly 0.1 joule energy. And if anything more would have been ahead of the eagle, it would have got even 0.01 joules of energy. So energy तो उसको कम होती जाएगी. And since the energy is going on decreasing step by step, there is a need of more food to be eaten, and that is why the number of trophic levels in a food chain are always limited. Otherwise, an eagle cannot survive merely on a snake, which is giving it only 0.01 joule of energy. But I still can't understand this funda. मेरे तो दिमाग में आज तक नहीं घुसा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सी घास के अंदर 100 जूल ऑफ एनर्जी है, इतने बड़े स्नेक के अंदर केवल 0.1 जूल ऑफ एनर्जी है. Is there any basis of understanding this? किताब वाले कुछ भी लिख देते हैं, टीचर कुछ भी पढ़ाने पहुंच जाते हैं. Who will believe that this much of grass is having 100 joules of energy and such a big snake is having 0.1 joule of energy? मतलब आप घास खाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आप सांप खाओ, बट मान लीजिए कुछ और आओ और आप उसको खाते तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी. चला रहे हैं हमको, पर ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये डेट लगी है ना, ये डेट, दिस इज द एनर्जी ऑफ टुडे. ऐसा नहीं है कि ईगल आज स्नेक आज ही पैदा हुआ और आज ही उसने खाना खाया. If a snake of 1.5 feet long or 2 feet or 4 feet long, it must have got its length over a period of time. हो सकता है कि वो 2 साल पुराना, हो सकता है वो 6 महीने पुराना, हो सकता है वो 1 year old हो. तो 1 year से रोज ही खा रहा था ना वो. Same is the true with the bird. किसी बर्ड केवल एक ही दिन का वर्जन थोड़ी है, उसके अंदर एक ही दिन की एनर्जी थोड़ी है. Of 22nd July which it ate that grass, उससे उसको इतनी एनर्जी मिली. तो क्या आज ही खाना खाया क्या बर्ड ने? The day bird was born, from that day इसकी मम्मी उसको चुका दे रही है पहले, and then it started eating its own, and you see frequently they eat. कभी इसकी छत से, कभी उसके पेड़ पे से, कभी उस पे, कभी वहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से. कुछ चिड़िया खा गई, उधर से वो खा गई, ग्रेन खा गई, किसी ने रोटी फेंकी वो खा गई. They keep on eating. They are not merely depending on this grass. So it is not that they will get only 10 joules of energy. It is not that the snake will get only 1 joule of energy. It is not that the
whatever eagle is getting only 0.1 joule of energy. They are eating, frequently eating, and whatever energy is stored in their body is not of one day's energy, but it is of so many days' energy. Henceforth, don't get confused by this logic कि बुक में गलत लिखा है, उल्टा होना चाहिए। बुक में बिल्कुल सही लिखा है। ये एक दिन की एनर्जी के बारे में बताया, दैट इज टुडेज एनर्जी 22 जुलाई। बट द बर्ड मस्ट हैव 2 years old, 2 साल तो रोज ही खा रहे थे। स्नेक जो है वो भी हो सकता है 2 साल पुराना, रोज ही खा रहा था। और बढ़ने के बाद एक ही ग्रास से थोड़ी खाई है, दिन भर में पता नहीं कितनी बार खाया होगा। और द स्नेक ने भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें खाई होगी, केवल एक बर्ड को खाकर तो उसका पेट थोड़ी बढ़ गया। तो इट मस्ट हैव एट बर्ड आल्सो, इट मस्ट हैव एट फ्रॉग्स आल्सो, इट मस्ट हैव एट सेवरल इंसेक्ट्स आल्सो, इट मस्ट हैव एट समथिंग एल्स आल्सो। कोई चूहा भी मिल गया होगा उसको भी खाया होगा। तो दे कीप ऑन eating and that long they fulfilling their energy requirement. We are talking only of this. If I put it in the other way, I can say a bird can eat less food because उसको जो भी घास खा रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। बट अगर ईगल को अपना पेट भरना है, एनर्जी लेनी है पूरी एनर्जी, तो उसको ज़्यादा फूड खाना पड़ेगा। And that is why several of our system, especially of India, इंडिया की एक बात है ना कि पुराने ज़माने में हमारे जो पढ़ने वाले थे किसी ज़माने में सागास, दे यूज्ड टू स्टडी एंड दे यूज्ड टू रिसर्च। फिर क्या हुआ भगवान जाने, मैं क्यों डिस्कस करूँ क्या हुआ, अब कोई नहीं पढ़ता। आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को क्या जरूरत है सब कुछ करने की, पापा करके गए, गए भी नहीं अभी तो है, अभी तो और फैल रहा है। अभी तो गूगल से बातचीत चल रही है, फिर फेसबुक से, फिर विंडोज से, फिर किससे और चलते ही जाएंगे। तो वो तो फैलाते जा रहे हैं साम्राज्य। तो बच्चे को कहाँ परेशान होना पड़ेगा। सिमिलरली जब हम लोगों का यहाँ सिस्टम बन गया नहीं भाई हमको क्या पढ़ना है, पढ़े चाहे नहीं पढ़े पंडित तो हम ही रहेंगे। तो उससे के साथ में क्या हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया टोटल इंडिया में। फिर आगे बाहर वाले अंग्रेजों का उद्देश्य तो कुछ और ही था। उन्होंने कहा इनसे तो चपड़ासीगिरी कराएंगे, बाबूगिरी कराएंगे। तो उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ा दी हमको कि वे रिमेन देयर होते। नाउ इवन इफ आवर चिल्ड्रन हैव टू गो आउट, दे हैव टू स्टडी सम ब्रिज कोर्स देयर। तो भैया चलो वो छोड़ो, उससे क्या मतलब है। हमारे कहने का मतलब है उन लोगों को इतना ज्ञान था तो उन्होंने कहा कि भैया अगर हम वेजिटेरियन डाइट खाएंगे तो विल गेट मोर फूड। इफ वी रीड अगर 9th क्लास की बुक के अंदर जब आप फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा कि आप मुर्गी खाते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है बिकॉज यू आर गेटिंग लेसर बेनिफिट। बिकॉज मुर्गी को पहले खूब करा चुका खिलाओ, फिर उसको उसके अंदर में जाए उसका चुका आके खा लो ना, मुर्गी को खिलाओ फिर मुर्गी को आके खाओ। तो दैट इज व्हाट द फंडा वर्क एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड द वेजिटेरियन डाइट इज मोर न्यूट्रिशियस, मोर एनर्जी रिच than the food energy which we are getting. But there are different logic. सभी एक हाथ लग जाएंगे तो वहाँ तक के लोगों को भी मिलेगा। इकोसिस्टम की बात हमने पढ़ी, एक लॉ और पढ़ा है ना हमने, वो वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डज इट स्टेट? वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तो व्हाई वी हैव टू वरी सो मच? द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी हैव इट दैट विल कंटिन्यू, खत्म तो होने वाली नहीं है, डिस्ट्रॉय तो होती ही नहीं है। देन व्हाई वी हैव टू वरी? if I ate some food all together, chapatis, rice and vegetables and other things all together मिला के 1 किलो खाना खा लिया मैंने, 1 किलो से ज़्यादा हो जाएगा बट मान लीजिए, and this is giving some about 2000 joules of energy। 2000 joules मेरी बॉडी में चला गया ना, अभी तो खत्म तो हो गई नहीं, लॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फिर नेवर गेट टू, देन व्हाई शुड आई वरी? Why should I worry and why should I have to eat
next meal, and the third meal, and the fourth meal, and the meal after meal. क्यों खाना पड़ रहा है? रोजाना खाना एक बार खा लो और उससे हमारी हमेशा की नीड पूरी हो जानी चाहिए. बट इट इज नॉट सो. What is wrong? Either this law is wrong or there is something else wrong. लॉ तो गलत नहीं है. लॉ गलत होता तो इतने साल कैसे पढ़ते हम? तो गलती तो कहीं और ही है. क्या है गलती? देखते हैं. लॉ तो सही, तो गलती क्या है? देखिए ये जो एनर्जी हमने लिए है वो किस फॉर्म में लिए? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. यू हैव स्टडीड द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन क्लास 9. हमने पढ़ा बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. 6 फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा. हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. It is a chemical energy. Human and other animals can use only chemical energy. We cannot live on light energy, we cannot live in the heat energy, we cannot live in the mechanical energy, we cannot live in the electrical energy, we cannot live in the sound energy. किसी आदमी को बैठा के उसके कान में ईयरफोन लगा दो कि यही तेरा खाना है, will he be able to survive? नहीं. किसी को आप धूप में बैठा दो, बोले खूब गर्मी मिल रही है, तेरे को लाइट भी मिलेगी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी से यू सर्वाइव, विल बी एबल टू सर्वाइव? श्योरली नॉट. मैकेनिकल एनर्जी उसको बैठा दो कार के अंदर, खूब घुमा दो, लो भाई तेरे लिए हम जो है काइनेटिक एनर्जी दे दी है तेरे को, तो क्या वो सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा. कौन सी एनर्जी चाहिए हमको? वी नीड ओनली केमिकल एनर्जी which is present in the form of bonds between the carbohydrate, between the protein, between the fats. ये एनर्जी को खाने के बाद what energy we get? We convert this energy into many other form of energy. We convert it into ATP, that is chemical energy. Then our body temperature is maintained, that is heat energy. There are several animals, that is the nerves in our body, they all are using electrical energy. Then there are some animals which even glow. They emit light, they are giving light energy. Sound तो हम सब प्रोड्यूस ही करते हैं, so we are converting the chemical energy into sound energy. Mechanical energy तो हमारा काम ही है. देखो मैं आपके सामने हाथ हिला रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखूँगा, यहाँ से वहाँ चलूँगा, वहाँ से इधर आऊँगा. काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट. स्टैटिक एनर्जी भी क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, वेयर आई एम स्टैंडिंग विदाउट एनी, वो केवल अपने आप को ग्रेविटी के अगेंस्ट मेंटेन करके खड़ा हो, तो आई एम यूजिंग पोटेंशियल. तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ऑल द एनर्जी आर कन्वर्टेड बाय दिस केमिकल एंड दोज ऑल एनर्जी आर नॉट रीयूजेबल. द एनर्जी विच इज लॉस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, there is not a single organism in the world which can survive on the heat energy. पूरी दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको आप गर्मी दे दो और वो जिंदा रहेगा. नो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड कैन मेक इट्स फूड यूजिंग हीट एनर्जी. इट हैज टू यूज द प्लांट. द प्लांट हैज टू यूज ओनली लाइट एनर्जी, नॉट द हीट एनर्जी. एंड वी कैन यूज ओनली केमिकल एनर्जी, नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी तो कोई यूज कर ही नहीं सकता, साउंड एनर्जी तो कोई यूज कर ही नहीं सकता. मैं किसी के सामने गाना गाने लगा तो प्लांट को भोजन मिल जाएगा, एनिमल को फूड मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी? डेफिनेटली नॉट. ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स आर मेनली डिपेंडिंग ऑन chemical energy which is fixed by the plants, and the plants require light energy. No other form of energy is suitable for us, and when we do any kind of activity, our energy is changed into heat energy, and the heat energy is such an energy which cannot stop also, it will radiate. Only in the thermos flask you can trap the heat energy and keep, and our body is not placed in thermos flask. So हमारी बॉडी में से हीट रेडिएट होकर चली जाएगी, and that is why there is a constant need of energy from outside source, and that is why we have to eat meal after meal after meal after meal. और अब इन दिनों जब आप घर में बैठे हैं ना, तो यार ईट ओवर ईटिंग, नाश्ता भी कर लिया, ठीक है, और फिर चलते फिरते आपने बिस्किट भी खा लिए,
फिर थोड़ी देर बाद में आप गए जूस भी निकाल के पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद में गए आपने जितने में लंच का टाइम हो गया, मम्मी ने कहा लंच हाँ लगाओ लंच, फिर लंच खा लिए, थोड़ी देर बाद में आपने मैगी दिख गया, चलो मैगी खा लेते हैं। एंड यू आर कीप ऑन ईटिंग इन योर वेट, इंक्रीजिंग योर वेट, बॉडी कंज्यूम तो कर ही नहीं पा रही है उसको। सो व्हेन इट इज़ नॉट कंज्यूमिंग इट विल गो एंड फिक्स इन आवर बॉडी इन सेवरल प्लेसेस, ठीक है। जांघें मोटी हो जाएंगी, यहाँ टायर्स आ जाएंगे, सीने में छाती में फ्राइड जम जाएगा एंड अदर प्लेसेस, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज जीरो एंड इनपुट ऑफ एनर्जी इज मोर एंड मोर, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज थिंक अकॉर्डिंग टू आवर नीड। आप देखिए ना, गाय पेट भर जाता है चुपचाप बैठ जाती है, ऐसा नहीं है पूरा पूरा जंगल पड़ा है मेरे लिए खाने के लिए, मैं तो खाऊंगी आज ही खाऊंगी। हम शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं, जाओ कितना सारा खाओ, ये तो मैंने पाया ही नहीं, चल ये भी लिया, थोड़ी दूर आओ, अरे ये वो भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, आँखें नहीं भरती है, पेट भर गया, थकान आ रही है, आँखें बोल रही है यार बहुत, जीभ बोल रहा है यार दिस what a nice lovely taste, why should I not have that? So we are just keep on grabbing. No other animal is like that. उसके सामने पूरा मैदान पड़ा है तो वो सारा का सारा आज नहीं खाएगा, हम तो सब every item will taste. ये तो प्रॉब्लम। So the amount of energy which we get in our body, वो उसको जब हम काम में लेते हैं तो उसका 90% यूज हो जाता है, only 10% is fixed in our body, in the tissues, in the cells, in the organs, and when anybody else or eats these organs, they get only that much of energy which is used by them. तो अब इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि एनर्जी की सप्लाई कॉन्स्टेंटली रिक्वायर है। देयर इज अ नीड ऑफ अ सन। सुन बाबा सुन, सुन कभी इधर से उधर मत जाना, आना रोज एवरी डे, बिकॉज इफ द सन विल स्टॉप कमिंग then there won't be any light energy, and if there is no light energy, no chemical energy will be free, and if there is no chemical energy, no survival of life. So all are depending on one another, and since energy is traveling with this way only, an eagle is not going to eat grass, a snake is also not going to eat grass. The body system is made accordingly. हमारा बॉडी सिस्टम बनाया है कि हम कार्बोहाइड्रेट भी खा सके, हम प्रोटीन भी खा सके। उनका बॉडी नहीं बनाया है कि वो घास खा सके, कार्बोहाइड्रेट खा सके। देयर बॉडी इज मेनली यूज्ड टू ईट प्रोटीन। सो वी आर omnivore but they are carnivore, and the herbivore, they are eating only grass, they are eating only grains. We are not herbivores. And our body is made only for eating grass or vegetables, तो हमको कैनाइंस नहीं मिलते, हमको प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं मिलते, हमको वो सारी ज़रूरतें नहीं मिलती जो दूसरों के अंदर मिलते, हम फिर हमारी बॉडी उसी के हिसाब से। ओके, सो वी I made you understand that is how energy flows and why these many individuals are required and why energy is decreased and why trophic levels जो है they cannot go more than 5, because इसके beyond जाएंगे तो उसको एनर्जी और कम मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल और पढ़ लेते हैं जिसको बेटर समझें। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, do you all agree that India has quite a good amount of corruption? We have to accept it, है तो है। वो पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज रेटिंग डालती है, हम लोग तो अपने यहाँ आसपास में है ना। तो मान लीजिए भारत सरकार ने गरीबों को टॉयलेट बनाने के लिए निश्चय किया कि वो 10,000 रुपये देंगे हर आदमी। सेंट्रल एजेंसी से 10,000 रुपये निकलते ही वो बाबू तुम्हारा बेटा को बोले 10% तो मेरा हक है, 1,000 तो मैं ही दूंगा, 900 रुपये इधर चले, 900 रुपये नेक्स्ट को जाने के साथ उसने कहा 10% तो मेरा हक है, आगे चला 810, उसने कहा 10% तो मेरा हक है, 81 रुपये और कम कर दो उसने, और इस तरह से आते रहते। उस आदमी के पास और उस आदमी के पास आते आते कितने रुपये, 6,000 5,000 6,000 रुपये में कौन सा टॉयलेट बनता है? यू कैन ओनली बाय ए कमोड एंड
place it in the open medium. Or you can make a wall, but you may not have a ऐसा ही यहाँ हो रहा है, इतना एनर्जी यहाँ से निकला, हर आदमी ने उसका 90% कंज्यूम कर लिया, 10% ही आगे जा रहा है। ये तो मैंने एक अलग से एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब बिजनेसमैन हु इज सेलिंग आइटम्स, एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और वो हर चीज़ के ऊपर 10% कमाता है, मान लीजिए। तो उसने सुबह फ्रिज बेचा, उसमें 10% कमाया, उसने वॉशिंग मशीन बेची, उसमें 10% बचाया, उसने कुछ और बेचा, उसमें से 10% आइटम आफ्टर आइटम में इज गोइंग ऑन सेलिंग एंड 10% उसमें से हर एक में से वो बचाता जा रहा है। सो दिस इज हाउ ही विल अर्न। हमारे यहाँ पे क्या है, 10% हर एक जो है वो आगे पास कर रहा है, 90% वो खुद कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बहुत लॉस का धंधा है, 90% लॉस एवरी स्टेप। सो द लास्ट इंडिविजुअल विल गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी एंड दैट इज व्हाई दिस सिस्टम जो है that require a constant supply of energy. दोनों बातें हो गई। मैंने आपको बताया कि we can use only chemical energy. Chemical energy can only fix by plant. Okay, so that's all for today. That is why एक बात और लिखा देता हूँ, that is why flow of energy termed as unidirectional. Once it entered, it will be consumed. Once it is consumed, it will never return back. एक ही डायरेक्शन में चल रही है, unidirect. PIONAL. The flow of energy is unidirectional in nature. Thank you, children.